Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed very fundamental concept of channel capacity. We have also discussed about the effect of channel, that is we have seen the effect of noise, that is whenever the signal is transmitted through the channel from transmitter to receiver, then because of the noise present in the channel, the signal quality will be degraded. And we have also discussed effect of channel bandwidth, that is channel bandwidth plays very important role in the deciding the performance of the communication system. It means that whenever the bandwidth of the communication channel is higher than the bandwidth of the signal to be transmitted, then there is no any issue. It means that at the receiver side the shape of the signal is preserved. But if the channel bandwidth is less than the signal bandwidth, मतलब जो सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो चैनल थ्रू, उसकी बैंडविड्थ और उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चैनल की बैंडविड्थ से ज्यादा है, और वी कैन से दैट कि चैनल की बैंडविड्थ अगर कम है, then in that case the signal shape will not be preserved at the receiver. It means that the signal is distorted by the channel. So it means that the channel bandwidth plays very important role in deciding the performance of the communication system. So if we conclude the importance of channel bandwidth, then in short, the bandwidth of the channel should be higher than the maximum signal frequency. जो सिग्नल आप ट्रांसमिट करना चाहते हो वो सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है, उससे चैनल की बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए. ओके, वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द चैनल कैपेसिटी. सो वी हैव टू डिफरेंट थियरम फॉर डिफाइनिंग द चैनल कैपेसिटी. वन इज गिवन बाय Nyquist for noiseless channel and another is given by Shannon for noisy channel. So basically noiseless channel does not exist in reality. So the concept of Nyquist theorem is only the ideal situation. We cannot employ or we cannot use that concept in our real practice for calculating the channel capacity. So only the formula or concept of Shannon theorem help us to calculate the channel capacity practically. So according to Shannon, it considers the effect of noise in calculating the channel capacity, and we have already discussed that formula of that channel capacity given by Shannon, that is C is equal to B log 2 raised to 1 plus SNR. That is channel capacity depends on the bandwidth of the channel and signal power. Signal power, that is the transmitted average power of the transmitted signal. We have also discussed very fundamental concept that channel bandwidth and SNR, these are two important parameters that determine the channel capacity. So to achieve the desired capacity, we can trade off between these two parameters, that is the channel bandwidth and SNR. So today we will calculate some numericals, or we will discuss some numerical on channel capacity. So using the formula of the Nyquist theorem as well as formula of the channel Shannon theorem, we will do some numericals. So first numerical, first example, let me read the question first. Consider noiseless channel with bandwidth of 3000 Hz transmitting a signal with two signal levels.
व्हाट कैन बी द मैक्सिमम बिट रेट। तो बच्चों यहां पे नॉइसलेस चैनल है, नॉइसलेस चैनल है तो हमें कौन सा थियरम यूज करना है, नाइक्विस्ट थियरम। कौन सा यूज करना है, नाइक्विस्ट। सो वी विल यूज द नाइक्विस्ट थियरम फर्स्ट बिकॉज हियर द नॉइसलेस चैनल इज गिवन। इसमें बैंडविड्थ कितनी है, b इज इक्वल टू बैंडविड्थ b इज इक्वल टू 3000 हर्ट्ज। बैंडविड्थ 3000 हर्ट्ज है, बैंडविड्थ इज 3000 हर्ट्ज। ट्रांसमिटिंग सिग्नल विथ 2 सिग्नल लेवल, जो नंबर ऑफ सिग्नल लेवल है सिग्नल में वो कितने हैं, कैपिटल L इज इक्वल टू 2। एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम बिट रेट, तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द चैनल कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट, C इज इक्वल टू 2 कैपिटल B दैट इज बैंडविड्थ log बेस 2 रेज टू L। तो यहां पे L की वैल्यू हमें पता है, B भी पता है, तो डायरेक्टली हो जाएगा, B की जगह पे 3000 लिख दो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय log 2 रेज टू L इज इक्वल टू, सो ये 1 हो जाएगा। तो बिट रेट कितना मिलेगा और चैनल कैपेसिटी कितनी मिलेगी, दैट इज द 6000 बिट्स पर सेकंड। सो बहुत इजी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 2, वी नीड टू सेंड 265 kbps over noiseless channel, very important, with bandwidth of 20 kilohertz. How many signal levels do we need? तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम डेटा रेट दिया गया है, मैक्सिमम बिट रेट दिया गया है और नॉइसलेस चैनल है और बैंडविड्थ भी हमारे पास है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स कितने चाहिए। सो हमें L फाइंड करना है, कैपिटल L फाइंड करना है। तो नॉइसलेस चैनल है तो but obvious it is a concept of Nyquist theorem, so we have to use the formula of the channel capacity of the Nyquist, that is the C is equal to, क्या formula है, same to same, 2b log 2 raised to base 2 raised to capital L। तो कैपेसिटी हमारे पास है कितनी है, 265 kbps, उसको bps में कन्वर्ट कर दो, दैट इज द 265 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो ये हो जाएगा 2,65,000 इज इक्वल टू 2b कितना है 20 किलो, उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दो तो 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा log 2 रेज टू L। तो ये हो जाएगा 40,000 और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो और ये हो जाएगा log 2 रेज टू L इज इक्वल टू 6.625। तो L क्या होगा बच्चों, L फाइंड करना है तो सिंपली यहाँ पे बेस 2 कर दो, सॉरी 2 रेज टू कर दो, तो लॉग निकल जाएगा और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल L इज इक्वल टू 2 रेज टू 6.625 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 98.7 लेवल्स। तो कितने लेवल्स चाहिए सिग्नल में, अगर इतनी चैनल कैपेसिटी चाहिए इतनी बैंडविड्थ की चैनल पे, तो हमें नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स टू बी 98.7 levels. Now next, numerical number 3, the SNR is often given in decibel. Yes, assume that given SNR is 36 dB and channel bandwidth is 2 megahertz. Calculate the theoretical channel capacity. तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट है, ओके, यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला है कि नॉइसलेस चैनल की नॉइसी चैनल है, तो हम प्रैक्टिकल केस कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर द नॉइसी चैनल। हम नॉइसी चैनल कंसीडर करेंगे और नॉइसी चैनल कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे रिक्वायर्ड चैनल कैपेसिटी फाइंड करेंगे। और बट ऑब्वियस यहाँ पे SNR है, मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो, नॉइस की बात है तो नॉइसी चैनल ही होगी। ओके, सो एक हिंट यहाँ पे वो भी है कि SNR है तो हमें बट ऑब्वियस शेनन थियरम यूज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू शेनन थियरम वी विल यूज फाइंड द चैनल कैपेसिटी। तो यहाँ पे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू शेनन, C इज इक्वल टू B log बेस 2 1 प्लस SNR 1 प्लस सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ओके, यहाँ पे जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है
वो नॉर्मल यूनिट में मतलब डीबी में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीबी से हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले वो काम कर लेते हैं। सो SNR DB इज इक्वल टू क्या होता है 10 log बेस 10 SNR। सो SNR DB इज इक्वल टू 10 log 10 SNR। SNR DB कितना है 36, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 log बेस 10 रेज टू SNR बेस टू SNR। ओके, तो 10 को इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3.6। तो क्या बचेगा 3.6 इज इक्वल टू log बेस 10 SNR। तो क्या कर देंगे, हमें क्या फाइंड करना है, SNR फाइंड करना है। तो SNR क्या हो जाएगा 10 रेज टू 3.6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा SNR इज इक्वल टू 10 रेज टू 3.6, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें SNR मिलेगा 3981। कितना मिलेगा 3981। तो सिंपल है, बैंडविड्थ हमें पता है, बैंडविड्थ कितनी है 2 मेगाहर्ट्ज है। तो इसको 2 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू 6 हर्ट्ज। लॉग बेस 2 3981 प्लस 1, SNR की जगह पे 3981 लिखो तो 1 प्लस 3981 ये हो जाएगा 3982, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें चैनल कैपेसिटी मिलेगी 24 मेगाहर्ट्ज। कितनी मिलेगी 24 मेगाहर्ट्ज। ओके, समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। कंसीडर द ओल्ड लैंडलाइन टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम विथ बैंडविड्थ B is equal to 3100 Hz. The telephone system is generally assumed that to required SNR of at least 3162 to operate without unacceptable bit errors. Calculate the maximum channel transmission capacity as predicted by the Shannon equation. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे पास बैंडविड्थ है, SNR है, और सिंपली चैनल कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, शैनन कैपेसिटी थ्योरम, दैट इज C इज इक्वल टू B log बेस 2 1 प्लस SNR। तो B कितना है, बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू कितनी है यहाँ पे 3100 हर्ट्ज। ओके, सो B की जगह पे 3100 हर्ट्ज लिखेंगे। log बेस 2 1 प्लस SNR कितना है 3162, तो ये हो जाएगा 3163। सो 3100 मल्टीप्लाई log 2 3163 हो जाएगा। अब बच्चों log 2 3163 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे सिंपल है, log मैं आपको दिखाता हूँ, log बेस 2 और 3163 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट मी राइट लाइक दिस। ऊपर हो जाएगा log बेस 10, ये जो है वैल्यू वो हो जाएगी 3163, ये आपको याद रखना है, ऐसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइडेड बाय log बेस 10, और ये बेस हो जाएगा 2। समझ में आ गया। फिर से log बेस 10 3163 ये हो जाएगा, डिवाइड बाय log 10, और ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। पहले log 10 ऊपर लिखो, ये वैल्यू उस पे आएगी, और यहाँ पे log 10 और ये वैल्यू उसके ऊपर आएगी। तो log बेस 10 आप इजीली कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा log बेस 10 3163 मतलब 3.5 एंड log 10 बेस 2 इज इक्वल टू 0.30, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 36.044 किलो बिट्स पर सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। Calculate the Nyquist data rate for bandwidth as B is equal to 3100 Hz and assume 8 signal levels per symbol। तो बच्चों यहाँ पे हमें बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नाइक्विस्ट डेटा रेट है तो नाइक्विस्ट थियरम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू 2B log बेस 2 रेज टू L। ओके, B कितना है यहाँ पे 3100 हर्ट्ज, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L 8 सिग्नल लेवल्स, L इज इक्वल टू 8। तो अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट चैनल कैपेसिटी C इज इक्वल टू 3100 log 2 रेज टू 8। ओके, सो अगेन ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 6200 मल्टीप्लाई बाय log
2⁸ को हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे भी मैंने बताया। क्या होगा, कन्वर्ट इनटू द log बेस 10। सो log बेस 10 ऊपर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा पहले न्यूमरेटर में, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय log बेस 10 रेज टू 2। ओके, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो log 10 रेज टू 8 दैट इज द 0.90309 एंड log 10 रेज टू 2 दैट इज अ 0.30103। और इसको आप कैलकुलेटर में अगर सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 3 इसका, और 6200 मल्टीप्लाई विथ दैट इज द 80,600 बिट्स पर सेकंड। अगर बच्चों आपको ये नहीं करना है तो इसको आप डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि log 2⁸ है, अकॉर्डिंग टू माय लॉजिक एंड ओपिनियन आई विल डू लाइक दिस। 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2⁵ लिख सकते हो। 8 इज इक्वल टू 2⁵, बिकॉज 2⁵ इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 2 और 2⁵। ओके, तो ये जो होता है वो आगे आ जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो क्या बचेगा 3 log 2⁵2 और log 2⁵ बेस 2⁵2 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 डायरेक्टली। ये झंझट में आपको पढ़ना ही नहीं, ये 10 बेस में कन्वर्ट करना उसमें पढ़ना ही नहीं, डायरेक्टली आप ये फॉर कंसेप्ट यूज करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते, दैट इज 3। सो बच्चों ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ी मैथमेटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, तो आप इजीली उसको कर सकते हो इजीली। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6। व्हाट इज द SNR रिक्वायर्ड टू जस्ट adequately transmit at 500 Mbps over Cat5 a twisted pair cable? Okay, express your answer in decibel for the SNR, that is SNR in dB। मतलब जो SNR हमें फाइंड करना है वो dB में चाहिए, ओके, डेसिबल में चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे चैनल कैपेसिटी, हमें कितनी चैनल कैपेसिटी चाहिए, कितनी चैनल कैपेसिटी चाहिए, 500 मेगाबिट्स पर सेकंड। सो वी नीड चैनल कैपेसिटी ऑफ 500 Mbps मेगाबिट्स पर सेकंड। ओके, इतनी चैनल कैपेसिटी चाहिए, सॉरी, मेगाबिट्स पर सेकंड ओवर Cat5 ट्विस्टेड पेयर केबल। सो Cat5 का मतलब है कैटेगरी 5, Cat5 स्टैंड्स फॉर कैटेगरी 5। ओके, तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, मतलब एक ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्विस्टेड पेयर केबल एक ट्रांसमिशन मीडिया है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 कंडक्टर होता है और दोनों कंडक्टर को एक दूसरे पे ट्विस्ट किया गया होता है, लाइक दिस। लेट मी ट्राई टू प्लॉट इट। ओके, ये एक कंडक्टर हो गया, दूसरे कंडक्टर के ऐसे ट्विस्टिंग किया गया होता है, ऐसे ट्विस्टिंग करते हैं। ओके, और बेसिकली ये ट्विस्टेड पेयर केबल की अलग अलग कैटेगरी होती है, और Cat5 जो कैटेगरी है वो कंप्यूटर नेटवर्क में ज़्यादा यूज होता है ये केबल, क्यों, कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये केबल ज़्यादा यूज होता है। और बेसिकली यहाँ पे हमें बैंडविड्थ पता नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में बैंडविड्थ नहीं है, तो बेसिकली कैटेगरी 5 जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसकी बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 100 मेगाहर्ट्ज उसकी बैंडविड्थ होती है, 100 मेगाहर्ट्ज। तो बैंडविड्थ हमारे पास है, कैपेसिटी, और हमें SNR फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करने के चैनल कैपेसिटी थ्योरम, दैट इज C इज इक्वल टू B log बेस टू 1 प्लस SNR। C कितना है 500 Mbps, तो ये हो गया 500। B कितना है 100 मेगाहर्ट्ज, तो अगर B को हम इस साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू log बेस टू 1 प्लस SNR। तो ये हो जाएगा सिंपली 5 इज इक्वल टू log 2⁵1 प्लस SNR हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेस चेंज कर दो, तो 1 प्लस SNR क्या हो जाएगा, 1 प्लस SNR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2⁵5। 2⁵5, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और log निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2⁵5 इज इक्वल टू 1 प्लस SNR। 2⁵5 दैट इज इक्वल टू 32। तो SNR कितना मिलेगा, SNR इज इक्वल टू 31। और SNR का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज ये 2 पावर का रेशियो है, सिग्नल पावर एंड नॉइस पावर का रेशियो है, तो मतलब इसका यूनिट नहीं होगा। सो 31 मिला हमें। अब हमें उसको dB में एक्सप्रेस करना है, वी हैव टू राइट द आंसर इन dB। तो
डीबी मतलब कैसे फाइंड करेंगे, तो लॉगरिथम ले लो, तो एस एन आर डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू 10 log बेस 10 रेस टू एस एन आर की वैल्यू रख दो 31, और ये अब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 14.91 डेसिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7, we would like to transmit information over category 5 twisted pair cable at 500 megabits per second is a signal to noise ratio of 30 dB adequate to transmit at 500 mbps। ओके, मतलब यहाँ पे हमें 500 mbps की डेटा रेट से अगर हम इस ट्विस्टेड पेयर केबल पे ट्रांसमिट करें डेटा, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो 30 dB सफिशिएंट है, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चैनल कैपेसिटी फाइंड करते हैं फॉर गिवन एसएनआर, ओके, एंड बैंडविड्थ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। कैटेगरी 5 ट्विस्टेड पेयर केबल की बैंडविड्थ कितनी होती है, 100 मेगाहर्ट्ज, दैट इज द बी इज इक्वल टू 100 मेगाहर्ट्ज। ओके, सो फॉर गिवन बी एंड गिवन एसएनआर ऑफ 30 dB हम चैनल कैपेसिटी फाइंड करते हैं। तो चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू बी लॉग बेस टू 1 प्लस एसएनआर। तो ये 100 मेगाहर्ट्ज है, लॉग टू 1 प्लस एसएनआर, एसएनआर डीबी में है, यहाँ पे 30 dB, तो 30 dB को नॉर्मल एसएनआर में कन्वर्ट करो, बिकॉज जो चैनल कैपेसिटी में जो एसएनआर है वो नॉर्मल फॉर्म में, वो डेसिबल में नहीं है। तो वेन एवर वी विल यूज द एसएनआर ओवर ईयर, वैल्यू ऑफ एसएनआर ओवर ईयर इन दिस फॉर्मूला, we must have to remember that this SNR is in simple form, not in decibel। ये डेसिबल में नहीं है, तो अगर डेसिबल में है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ओके, और कन्वर्जन हमें पता है, कन्वर्जन हमने आगे भी किया, दैट इज SNR dB is equal 10 मल्टीप्लाई log 2 रेस टू SNR, और आप ये कन्वर्जन भी जानते हो। तो 30 dB का आंसर आएगा 1000, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1000। ओके, ये log 2 है, तो उसको log 2 रेस टू 1001 है, तो उसको कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखाया आगे, कि उसको log 10 1001 करो और नीचे log 10 रेस टू 2 करो, और ये 10 रेस टू 2 मेगाहर्ट्ज है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, दैट इज 996.72 मेगाबिट्स पर सेकंड। सो फॉर गिवन नॉइस टू सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड गिवन बैंडविड्थ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, वी हैव channel capacity over this channel, that is the 996.72 megabits per second। और हमें कितने डेटा रेट से ट्रांसमिट करना है, 500 मेगाबिट्स पर सेकंड से। सो वी कैन इजीली ट्रांसमिट। ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी मिल रही है, 996.72 मेगाबिट्स पर सेकंड, और हमें यहाँ पे कितने डेटा रेट से ट्रांसमिट करना है, 500। सो इट कैन बी इजीली अचीव्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम, वी कैन इजीली ट्रांसमिट द डेटा एट 500 मेगाबिट्स पर सेकंड। मैक्सिमम कितना डेटा रेट अचीव यहाँ पे मिल सकता है, 996.72 मेगाबिट्स पर सेकंड मैक्सिमम डेटा रेट है। तो अगर हम इस चैनल पे मैक्सिमम ये डेटा रेट से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो हमें तो यहाँ पे कितने डेटा रेट से ट्रांसमिट करना है, 500 मेगाबिट्स पर सेकंड। सो इट कैन बी इजीली डन, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, कैलकुलेट द चैनल कैपेसिटी फॉर एक्सट्रीमली नॉइसी चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द चैनल कैपेसिटी फॉर एक्सट्रीमली नॉइसी चैनल, ये हिंट है क्वेश्चन में। हिंट कौन सी है, एक्सट्रीमली नॉइसी चैनल। एक्सट्रीमली नॉइसी चैनल का मतलब होता है उसमें नॉइज कितना है, नॉइज कैन बी कंसिडर एज अ इंफिनिटी, बहुत ही ज्यादा हाई, बहुत ही हाई मतलब अप्रोक्सीमेटली नियरर टू इंफिनिटी, बहुत ही हाई है। अगर नॉइज बहुत ही हाई है तो एसएनआर कितना मिलेगा, एसएनआर क्या होता है, एसएनआर इज इक्वल टू दैट इज अ सिग्नल पावर, एवरेज सिग्नल पावर, सिग्नल टू, और नॉइज पावर। नॉइज पावर कितना है, बहुत ही हाई है नॉइज पावर। नॉइसी चल रहा है तो नॉइज पावर बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली नियर टू इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर अगर नियर टू इन्फिनिटी है तो एसएनआर कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली नियर टू जीरो। और मान लो कि जीरो है, एसएनआर कितना मिलेगा, जीरो। तो अगर एसएनआर जीरो है तो चैनल कैपेसिटी थियरम में एसएनआर की जगह पे जीरो लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू बी लॉग बेस टू 1 प्लस एसएनआर। एसएनआर जीरो है तो ये कितना होगा, बी
log base 2 रेस टू 1, तो ये हो जाएगा b log 2 रेस टू 1। ओके, तो ये 2 रेस टू 1 मतलब ये होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें चैनल कैपेसिटी मिलेगी 0। तो अगर यहाँ पे बैंडविड्थ चैनल की बहुत ही हाई होगी, बट अगर चैनल नॉइसी है, एक्सट्रीमली नॉइसी है, तो हमें चैनल कैपेसिटी 0 मिलेगी। समझ में आ गया? यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली नॉइसी चैनल, चैनल कैपेसिटी 0, मतलब वी कैन नॉट सेंड द डेटा ओवर दिस चैनल। ओके, नहीं अगर हम ये चैनल पे डेटा भेजेंगे तो रिसीवर साइड हमें कुछ नहीं मिलेगा, टोटल लॉस हो जाएगा, सिग्नल पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द नॉइज। ओके, मतलब बैंडविड्थ अगर चैनल की बहुत ही हाई है, फिर भी बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली नॉइसी चैनल वी कैन नॉट सेंड द डेटा ओवर दिस चैनल। ओके, समझ में आ गया? सो आज हमने चैनल कैपेसिटी पे जितने भी एग्जाम्पल किए वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमने दोनों थियरम पे एग्जाम्पल किए, मतलब नाइक्विस्ट थियरम एज वेल एज द शेनन थियरम, दोनों का कंसेप्ट यूज करके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर in our next video lecture. Thank you very much.